خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں یہ اجلاس جاری تھا جو کہ زیر صدارت تھا خورشید شاہ کے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے بیورو چیف بے نظیر مہدی۔ جی بے نظیر، آگاہ کیجیے گا، اجلاس ختم ہو گیا ہے، کیا فیصلہ طے پایا؟ جی بالکل، آج یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خصوصی کمیٹی میں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کے لیے بنائی گئی تھی، اور تمام جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں، انہوں نے اپنے اپنے ڈرافٹ جو تھے وہ اس کمیٹی میں رکھے تھے، اور کافی دن سے اس پہ ورک ہو رہا تھا کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اب پارلیمنٹ میں لانی ہے۔ تو اب کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے، اور جو کہ کمیٹی کا اجلاس جو تھا وہ خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا تھا۔ خورشید شاہ جب باہر آئے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ اس پر ہماری اتفاق رائے ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھوڑا اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی میں جو میثاق جمہوریت 2006 میں ہوا تھا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، اس کے تحت جو یہ تھا اس میں یہ بات واضح تھی کہ ملک میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، جبکہ جے یو آئی فے کا یہ موقف تھا کہ آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے کہ جس میں پارلیمنٹ اور آئین سے متعلق سارے معاملات دیکھے جائیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، بینچ کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور جو کمیٹی کے ارکان تھے جیسے مسلم لیگ نون کی طرف سے عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ جب کمیٹی کا آغاز ہوا تھا اسی وقت انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ آج جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے ایک جملہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شاہ صاحب ایک پھونک ماریں گے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اتفاق ہو جائے گا۔ ایک ڈیولپمنٹ اس طرف 26ویں آئینی ترمیم پہ جاری ہے، اور ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور پی ٹی آئی کا ایک وفد موجود ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں وہ ایک ہی وفد موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی مولانا کے ساتھ بعض جو ہیں وہ حکومتی وفد، پیپلز پارٹی کا وفد اور پی ٹی آئی کے وفد جاتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ان کی بیٹھک ہوئی ہے، اور اب یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ کابینہ میں جائے گا، اور کابینہ کے بعد جو ہے یہ دونوں ایوانوں میں ٹیبل کیا جائے گا۔ تاہم ابھی 6 بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ہونا باقی ہے، لیکن یہ ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے تو وہ کیبنٹ سے اپروو ہوتی ہے، اور اب یہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل کسی وقت یہ کیونکہ اس پہ اتفاق رائے جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور کل کسی وقت جو ہے یہ کابینہ سے پہلے منظوری لی جائے گی اس کی، اور پھر یہ دونوں ایوان میں ٹیبل کیا جائے گا۔ جی بے نظیر، آپ آگاہ کر رہی تھی، تفصیلات کے لیے مزید آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایک ہی وقت میں پی ٹی آئی کا وفد بھی موجود ہے، مولانا فضل الرحمان کے گھر پیپلز پارٹی کے صدر کی زیر صدارت یہ اجلاس، ان کی ملاقات اس وقت جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کسی قسم کی ترامیم پہلے پیش نہیں کی گئی تھی، تو آیا کسی قسم کے ان کے مطالبات رکھے گئے ہیں، یا ترامیم کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی تھی ہماری، اور جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد سے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ ہم کسی بھی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ترمیم کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کو ووٹ نہیں کرے گی۔ کل بھی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جو تھے وحدت مسلمین کے سربراہ جو ہیں راجہ ناصر عباس، ان سے کل ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کل بھی یہ بات کہی، رات دیر تک ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی گئے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بل کو سپورٹ نہ کرے، مگر کم سے کم پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھے، اس پر بات کرے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن، یہ ایک جمہوری روایت ہے کہ اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کو اپوز کرے یا سپورٹ کرے، مگر ان کے پاس ایک ڈرافٹ موجود ہونا چاہیے، انہیں سارے اس ترمیم کے جو ifs اینڈ بٹس ہیں وہ سب معلوم ہونے چاہیے۔
تو जो माजी में भी तरमीम होती रही हैं उसमें भी जो है वो इसी तरह होता रहा है कि ऑपोजिशन बेशक अपोज करे लेकिन कोई भी मसवदा जैसे कि एक महीने पहले तो बेनजीर पीटीआई की जानिब से क्या किसी किस्म का फिर ड्राफ्ट दिया गया? देखिए पीटीआई की जानिब से जो था वो ड्राफ्ट दिया गया था, मौलाना फजल रहमान के सामने भी रखा गया था और उन्होंने भी ये कहा था कि हम आईनी अदालत के हक में नहीं हैं और जजेस को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। उन्होंने भी ये बात कहा था और जैसे कि कहा जा रहा था कि जजेस की जो मुद्दत जो उनकी उम्र होती है उसको बढ़ा दिया जाए, तो फिर जो जस्टिस काजी फाइक ईसा जो हैं वो जो वो रिटायर हो रहे हैं, अब तो उनकी जगह जो है मंसूर अली शाह आ जाएंगे। लेकिन फिर उनकी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि एक जिस तरह आर्मी चीफ का एक तकरूरी होती है कि जो मोस्ट सीनियर 3 ओहदे पर होते हैं, मोस्ट सीनियर 3 होते हैं, उनमें से एक को जो है वो बना दिया जाता है। इसी तरह जजेस की भी जो तकरूरी है, पहले हमेशा ये होता है, सबको पता होता था कि चीफ जस्टिस कौन सा आएगा, जो उसके बाद रिटायर होते थे, जो मोस्ट सीनियर होते थे वो बन जाते थे। लेकिन अब 3 जो तकरूरी का चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की तकरूरी का तरीका है वो सबसे ज्यादा अहम है। जो मोस्ट सीनियर 3 होंगे उनकी जो है वो काबीना अप्रूवल देगी, जो है पार्लियामेंट अप्रूवल देगी और इस कानून के तहत जो है वो जज आकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। इसका अगर हम देखें, इसका असर अगर हम देखें तो ये देखें, अब सबको ये पता होता है कि एक जज अगर रिटायर हो रहा है उसके बाद अब इस जज की बारी है, तो ये फैसलों पे जो है बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। लेकिन अगर कोई 3 मोस्ट सीनियर जज में से कोई एक बनाया जाएगा तो कम से कम जो मुस्तकबिल में होने वाले फैसले हैं या कोई पिटिशन दायर है या कोई केस लगा हुआ है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, जैसे अभी मकसूद नशिस्तों का केस था, इसके अलावा और दर्जनों ऐसे केसेस हैं, तो उस प्रोस्पेक्टर में अगर इसको देखा जाए तो वो उन केसेस के लिए जो है वो एक बहुत बेहतर जो फैसले सामने आ सकेंगे। तो पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ था कि जो है वो 3 जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं वो उनको करा जाए। लेकिन देखें पीटीआई का मौक़िफ़ होना, पीटीआई ने जो अपना ड्राफ्ट दिया है वो होना अलग बात है। आखिरी वक्त तक, परसों तक जब इस कमेटी का इजलास हुआ था, जब तक बैरिस्टर गौहर का यही बयान था, खुद हमारी भी उनसे कई दफा बात हुई, उनका यही था कि हुकूमत की तरफ से कोई भी ड्राफ्ट जो है वो हमें नहीं दिया गया। लेकिन अगर पीटीआई को कोई ड्राफ्ट नहीं दिया जाता तो फिर वो कमेटी के अंदर जो कमेटी के इजलास अटेंड कर रहे थे और बैरिस्टर गौहर खुद इतने मजे हुए कानूनदान हैं, तो फिर वो जो बात कर रहे थे या मौलाना के पास जिससे बात हुई थी वो किस बेस पर हो रही थी। यहाँ एक सवाल ये भी होता है, ठीक है ऑपोजिशन अपनी तरफ से प्ले कर रही है, आईनी तरमीम को अपोज करने का उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है, लेकिन वो किस बेस पे हो रही थी। और फिर एक मौलाना साहब का इसमें ये भी था कि जो उन्होंने पीटीआई के साथ मिलके एक जो बातचीत की थी कि पीटीआई के हम 2 दिन से ये इजलास जारी है, आज भी हुआ, कल भी हुआ, आज भी हुआ, कि पीटीआई के जो तमाम लीडरशिप है वो खाया सिवाय बैरिस्टर गौहर के, साहबजादा हामिद के और 2 एमएनएस जो हैं वो और आते हैं। उसके अलावा जो पीटीआई की जो जितने भी एमएनएस हैं वो जो है वो सब अंडरग्राउंड हैं। लेकिन मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ था। कल भी उनका पार्लियामेंट में उन्होंने बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया, खुसूसी कमेटी में भी इस बात को जोर दिया था कि जो है वो पीटीआई की पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जब कोई आईनी तरमीम पास हो रही हो तो पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि ऑपोजिशन का भी मौक़िफ़ सामने आए और वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बने। लेकिन ये बताइएगा बेनज़ीर के मौलाना साहब की जानिब से तो ये बारहा कहा गया था कि मैं कभी भी इसके हक में वोट नहीं दूंगा, मेरी जानिब से कभी भी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया गया और ना मैं अब दूंगा, तो आया किन बिना पर वो मान गए? बेनज़ीर क्या आप हमें सुन सकती हैं? बेनज़ीर से दोबारा सवाल करके तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि मुसवदे को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ये भी तारीख में पहली बार हुआ है कि मौलाना साहब के घर पर पीटीआई का वफ़द मौजूद है और आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि मुतफ़क्के के दौरान मुतफ़क्का मंजूर होने तक पीटीआई की जानिब से सिर्फ बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी ज़ाहिर हो रही थी।
दीगर अरकान फिर भी गायब थे। PTI की जानिब से कई बार ये मौक़िफ़ सामने आया कि हम इसके हक़ में वोट नहीं देंगे, इसकी मंजूरी तरमीम की मंजूरी में कभी भी वोट नहीं देंगे, लेकिन बारहा अपोजिशन की जानिब से ये कहा गया, हुकूमत की जानिब से, कि एट लीस्ट आपको अपना मुसवदा तैयार करना चाहिए है। आप क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं या आपके क्या मुतालबात हैं, आपको उनका ड्राफ्ट तैयार कर लेना चाहिए है। फिर बाद ज़राए के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि मौलाना साहब के सामने PTI की जानिब से ड्राफ्ट भी रखा गया, उस पर भी नज़रसानी की जा रही थी, लेकिन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास, जो कि 3 दिन तक चलता रहा और 3 दिन चलने के बाद उसका फ़ैसला अब आ चुका है। वो मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है ये मुसवदा, और इसके अंदर PTI की जानिब से किसी किस्म की कोई ख़ास तरामीम पेश नहीं की गई, ख़ास तो क्या ना ख़ास तरामीम भी पेश नहीं की गई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एक ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद उन्होंने वो ड्राफ्ट पेश किया है और मौलाना फजल रहमान के सामने भी वो ड्राफ्ट पेश किया है। मुलाकात इस वक्त जारी है, मुलाकात की क्या तफसीलात सामने आएंगी कुछ ही देर में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है। मौलाना फजल रहमान के घर पे PTI का वफ़द भी मौजूद है। आइनी तरमीम के हवाले से ये मुशावरत उनके घर पर इस वक्त जारी है और उसके हवाले से क्या तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं कि खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये राय मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई है। ये मुसवदा है जो मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हुआ है। इसके अंदर बड़ी बात ये थी कि जजेस की तैनाती और तरीक़ेकार में तोसी करनी थी, जो कि मेरे ख्याल से कि कर दी गई है। जो हमारे सामने ज़राए आ रहे हैं उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि मुसवदे को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है। आइनी तरमीम के मुसवदे से MKM और ANP की तरमीम ड्रॉप की गई है। इजलास खत्म हो चुका, मुसवदे की मुतफ़क्का तौर पर उन्हें मंजूर किया गया। आइनी तरमीम का मुसवदा खुसूसी कमेटी में मुश्तरका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। खुर्शीद शाह ने ऐसा कहा है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक क्या हम डेवलपमेंट, PTI की जानिब से मुसवदे की मुखालफत की गई और PTI के आमिर डोगर और JUI के शाहिद अख्तर की जानिब से भी इस मुसवदे की मुखालफत की गई है, जबकि मुसवदे से MKM और ANP की जो तरमीम है उन्हें ड्रॉप किया गया है। और खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत ये पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ जो कि अब ख़त्म हो चुका है और ख़बर यही सामने आ रही है कि मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है मुसवदे को। ये अहम डेवलपमेंट इस वक्त जो हुई है उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामले पर कमेटी ने मामला काबीना में भेजने का कहा है, ऐसा खुर्शीद शाह ने कहा है और काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी। कमेटी ने आज जो बिल पेश किया उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। हुकूमती तरमीमी मुसवदा कल मंजूरी के लिए अब काबीना में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी होगी। खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर मुसवदे की मंजूरी काबीना देगी और कल पार्लियामेंट के इजलास में बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी होगी। पार्लियामानी कमेटी ने आइनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे की मंजूरी दे दी है, जबकि आइनी तरमीम के मुसवदे से MKM और ANP की तरमीम को ड्रॉप किया गया है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास अब ख़त्म हो चुका है और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इस खुसूसी इजलास में मुसवदे को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जबकि PTI के हवाले से कहा जा रहा है कि PTI की जानिब से मुसवदे की मुखालफत की गई है और PTI के आमिर डोगर और JUI के शाहिदा अख्तर की जानिब से इस मुसवदे की मुखालफत की गई है। ब्यूरो चीफ बेनज़ीर मेहदी इस वक्त साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, अहम डेवलपमेंट है ये, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बिलावल जरदारी जो हैं वो एक प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं सहाफ़ियों को कि जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है और अब जो है ये मसवदा जो है वो काबीना से पास करवाया जाएगा। काबीना की अप्रूवल देगी, जिसके बाद जल्द से जल्द वो कह रहे हैं कि अब इस बात की उम्मीद है कि कल जो है वो इसको हम दोनों ऐवानों से जो है पास करवा लें।
फिर उन्होंने जो दूसरी बात जो की उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का जुडिशल जो अदालत बनाने पर था, आईनी अदालत बनाने पर जो उनका कंसेंसस था, जो उनका स्टैंड था कि वो आईनी अदालत नहीं चाहते, आईनी बेंच बनाना चाहते हैं, और दूसरे जो उनके तहफ्फुज़ात थे वो कल रात तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि हम रात देर तक उनकी सिटिंग्स होती रही हैं और अभी भी मेरी उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और उसी वक्त जैसे कि पहले हमने बताया कि JUI से तहरीक इंसाफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही वक्त में जो थे मौलाना साहब के घर पे जो मौजूद थे, और फिर अब वो वापस आए हैं। इधर इजलास चल रहा था खुसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत, और उसमें खुर्शीद शाह ने जो था वो जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने ये बताया कि अभी थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर बताएंगे, लेकिन ताहम उन्होंने कहा कि मैं ये खुशखबरी सुना दूं कि इत्तेफाक हो गया है। जो भी इफ्स एंड बर्ड्स थे वो दूर कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि कल रात में गया था, उन्हें जो तहफ्फुज़ात थे इस आईनी तरमीम पे हुकूमत से मौलाना फजलुर रहमान को, वो मैंने जाके वजीर आजम को बताया, और फिर वजीर आजम ने अपनी कानूनी टीम को से एक नया ड्राफ्ट तैयार करवाया जिससे JUI फे की भी जो तहफ्फुज़ात थे उनको दूर किया गया, और अब जो है इत्तेफाके राय कमेटी के अंदर हो गया है। ताहम अभी ब्रीफिंग दी जा रही है और बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हम इसको अब ऐवान में लाएंगे और इसको हम पूरी करवा लेंगे। और उन्होंने एक बात जो अभी उन्होंने कहा कि इसमें मैं वजीर आज़म पाकिस्तान के किरदार को सराहूंगा कि उन्होंने सबकी शिकायत को दूर किया और सबकी शिकायत को मद्देनजर रखा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐवान में सबके जो तहफ्फुज़ात थे उनको दूर किया, बार बार राब्ते किए, बार बार चीजों की किया। हमें इस चीज में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन जो एक बात है कि जो तारीख में ये लिखा जाएगा, उन्होंने कहा कि ये लिखा जाएगा, तारीख ये बयान करेगी कि हमने कोई भी बैकडोर से आईनी तरमीम लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाया, खुसूसी कमेटी बनाई और उसके बाद जो है सबके ड्राफ्ट को हमने मद्देनजर रखकर और फिर एक ड्राफ्ट बनाया, और इस फाइनल जो अब जो ड्राफ्ट है इसकी मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी, जिसके अंदर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको भी जो है वो इलेक्शन लड़ने का एक शिक इसके अंदर शामिल की गई है। इस मसवदे में जुडिशल, जैसे कि मैंने कहा कि आईनी अदालत के हवाले से शामिल की गई है, जजिस की तकर्रुरी के हवाले से इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है वाज़ेह की गई हैं। तो अब सबको यही इंतजार है कि बस अब एक जो इसका अब आईनी तकाजा जो है वो बस एक ये रहता है कि अब कैबिनेट मीटिंग होगी और कैबिनेट मीटिंग वजीर आजम उसको चेयर करेंगे और उस काबीना से इसकी अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद ये दोनों हाउस में जो है ये बिल टेबल कर दिया जाएगा। अच्छा बेनज़ीर, ये जो मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी की बात की जा रही है, किस तरह से ये मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि JUI का एक रुकन और इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी मुखालफत ही कर रही है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन जमात है, उसका तो मुखालफत करना बनता है और ये बात एक बात नहीं। जी बेनज़ीर मेहदी से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है, एक मरतबा फिर उनसे राबता करेंगे और ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है आईनी तरमीम के हवाले से, जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि वो ये उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो कल यकीन दहानी कराई है, जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए थे मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तरमीम को लेके, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें दूर किया जाएगा और आईनी तरमीम पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि PP और आइन साजी अपनी सियासी ताकत पर पास करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया है और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि PP JUI नून लीग में इत्तफाक राय हुआ है। बेनज़ीर साथ मौजूद है। जी बेनज़ीर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें एक जो पहले भी ये बात सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम, ये जो आईनी तरमीम का पूरा मसवदा है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा करने पर की तजवीज़ हुई थी, वो भी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मान ली है। इसके अलावा
अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी बताया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का जो है एक तजवीज़ थी वो भी मंजूर की जा रही है। इसके अलावा जुडिशरी से मुतालिक जितनी भी तरमीम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2006 के अंदर जो एक मुआहिदा हुआ था मुस्लिम लीग नून ने और मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और जब से ही ये बात उस वक्त ज़ेर गौर थी और उस मुआहिदे में लिखा हुआ था कि जो है एक आईनी अदालत होनी चाहिए, लेकिन उस आईनी अदालत की जो है वो अब तक ये बन नहीं पाई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत का जो मुआहिदा हुआ था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त से ही इसके लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पे कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, जबकि JUI से का मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए, अलग से एक आईनी बेंच तश्कील देना चाहिए कि जो कि तमाम पार्लियामेंट और आइन से जुड़े मामलात को देखे और जितने भी आईनी मामलात हैं वो उस आईनी बेंच के सामने जाने चाहिए। तो आईनी बेंच वाली बात पर जो है वो इत्तेफाक हो गया है। इसी तरह जजेस की जो तकर्रुरी जजेस की एक्सटेंशंस पर एक जो मौलाना फजलुर रहमान और JUI से को, बल्कि अगर आप कहें तो तहरीक इंसाफ को भी, जो अपोजिशन जमात है उसको भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ था कि जस्टिस काजी फाइक ईसा जो अब चंद ही दिन में अगले ही हफ्ते जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनको एक्सटेंशन की बात हो रही थी, यानी उनकी जो एज होती है वो 65 से बढ़ा के और आगे 3 साल और एक्सटेंड कर दी जाती। तो इस बात पे मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो नहीं मान रहे थे, बल्कि तहरीक इंसाफ ने भी इस बात को बुरी तरीके से अपोज किया था, क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके PTI उनके लिए बहुत हार्ड लाइन लेती है, ऑपोजिशन बहुत हार्ड लाइन। तो फिर जजेस की तकर्रुरी पर बात आई कि जो जैसे कि जो जज होता है, जो मोस्ट सीनियर जज होता है, वो सबको पता होता है कि जैसे काजी फाइक ईसा हैं, तो अब इनके बाद जैसे मंसूर अली शाह का नाम आ रहा था, ये सबको पता होता है। और फिर ये चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के जो रवैये होते हैं, पार्लियामेंट में जो कानून साजी होती है उसके रवैये जो होते हैं वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस अपनी नजर में रखते हैं, और जो रवैये होते हैं वो सब उनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे मंसूर अली शाह को बहुत ज्यादा, जैसे काजी फाइक ईसा को गवर्नमेंट जो थी मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको एक्सटेंशन की मुस्तकिल बातें की जा रही थी। तो अब आप ऐसे इस सारे तनाजुर में आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं कि अब जो थोड़े अगर वो उनको उसी तरीके कार के तहत के मोस्ट सीनियर जो पहला जज होता है बस उसके बाद उनकी तकर्रुरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो जैसे मंसूर अली शाह अब जो फैसले करेंगे वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर कितने असरअंदाज होंगे। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग जो थी, ये जो इस तरह के जो असरअंदाज होते हैं फैसले, उनको किस तरह से अपोज किया मुस्लिम लीग नून ने और ये कहा कि जैसे काजी फाइक ईसा ही को रखना चाहिए, तो ये एक आगे चल के एक बड़े प्रोस्पेक्टर में देखें तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी जमात उसको अपोज इस वक्त कर रही है वो आगे चल के उनके लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकती है, कितना मसला हो सकता है। तो इसीलिए कि जैसे और जैसे आर्मी चीफ का जो है वो तकर्रुरी होती है कि 3 मोस्ट सीनियर जो होते हैं उनमें से किसी एक का नाम जो है वो उनका एक का नाम जो है वो अप्रूवल दे दी जाती है और फिर वो उस ओहदे पर उनकी तकर्रुरी हो जाती है। तो इसी तरह जो है अब पार्लियामेंट ये जो 26वीं आईनी तरमीम आएगी, इसके बाद जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से किसी एक को जो है उसकी मंजूरी दे दी जाएगी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। अच्छा बेनज़ीर, एक मुलाकात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे, दूसरी जो मुलाकात है मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमाओं की, इस बारे में क्या खबरें आ रही हैं, वो मुलाकात कैसी रही? देखिए PTI रहनुमाओं की तो PTI तो अभी भी ये कोशिश कर रही है। अगर आप PTI के जो मेंबर कौमी असम्बली हैं या सेनेटर्स हैं उनसे आप बात करें, शिबली फराज से आप बात कर लें, बैरिस्टर गौहर से आप बात कर ले या सर कैसर से आप बात कर ले, तो वो उनकी तो वो तो अभी भी इस चीज को, इस आईनी तरमीम को जो है वो काला कानून कह रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो PTI के इत्तेहादी हैं जैसे वहदत मुस्लिमीन है, उनकी एक सीट है, वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। और PTI जो मौलाना फजलुर रहमान के घर, आपने जैसे मुझसे पूछा कि ये मौलाना फजलुर रहमान के घर गई और बार बार जा रही है, हमने देखा कि जितनी दफा गवर्नमेंट गई है उतनी दफा ही PTI गई है।
تو پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ اس کے لیے ووٹ نہ کریں، یا کوئی اس ترمیم کو پاس کرانے کے اندر جو ہے ظاہر ہے مولانا صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے، مولانا صاحب کے ووٹس کے بغیر یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونا بہت مشکل کام ہے۔